So guys, today we are going to start with the wrapper classes. What exactly is the wrapper classes? To understand it, it is very important. Actually, even when the it is freshers or 1 year, 2 year or 3 years, 4 years experience people, right? I always start my interview with this question only, right? I always ask what is the difference between wrapper classes and primitive data types, right? And then I ask them what is the default value for wrapper, what is the default value of primitive, what will happen if you are saving those into the database as a default, right? And all these things I ask इन द फर्स्ट सेशन ऑफ माई इंटरव्यू ओनली। मतलब पहला क्वेश्चन ही मेरा यही यही से स्टार्ट होता है। रैपर से रिलेटेड ही मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, राइट? सो नॉट जस्ट माइन बट अदर पैनल ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चंस, अदर इंटरव्यू पैनल ऑल्सो इन अदर कंपनीज ऑल्सो दे आस्क दिस क्वेश्चंस, राइट? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज पर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? एंड इंटरव्यू के अलावा भी आपको नॉर्मली भी ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। Now, the first thing, what is wrapper class, right? तो guys, Java is a object-oriented programming language. ठीक है? As of now, we know what is object. हमें पता है अभी object क्या होता है, right? And Java is a object-oriented programming language. In Java, we can represent everything in the form of object. In Java, we can represent everything in the form of object, right? To represent primitive data types in object format, we provided, ठीक है, Java provided wrapper classes. Java provided wrapper classes, right? Guys, we have this, right? What we have? Primitive data type means क्या? Int, ठीक है? ये जो int है, int is a primitive data type, right? Then we have the char, char is a primitive data type. Then we have the boolean, राइट? वी हैव द बुलियन, बुलियन इज अ प्रीमेटिव डेटा टाइप। बुलियन के अलावा भी जो बाकी जो भी है, ठीक है, जैसे लॉन्ग हो गया, लॉन्ग हो गया, राइट? यू हैव द बाइट, राइट? बाइट, दिस आर द प्रीमेटिव डेटा टाइप्स। इनको अगर आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में अगर चाहिए, इफ यू वांट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, देन वी हैव द रैपर क्लास, then we have the wrapper class. Simple fit term है, what if to represent primitive data types in object format, we Java provided the wrapper class, Java provided the wrapper classes, ठीक है? These things you must know, ठीक है? ये बेसिक चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है? What next? For every primitive type, corresponding wrapper class is available, right? For every primitive type, corresponding wrapper class is available. All wrapper classes are the part of java.lang package, ठीक है? java.lang पैकेज का पार्ट है ये। तो हमें कुछ भी इंपुट वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वी डोंट नीड टू यूज एनी इंपुट स्टेटमेंट, राइट? देन all class wrapper classes are immutable, final and immutable, right? तो गाइस आपको जनरली इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा स्ट्रिंग से रिलेटेड, ठीक है? स्ट्रिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, राइट? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, वी नो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, राइट? तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अलोंग विद स्ट्रिंग व्हाट ऑल आर द क्लासेस जो इम्यूटेबल है, व्हाट ऑल आर द क्लासेस जो इम्यूटेबल है, राइट? इम्यूटेबल क्लास कौन से है स्ट्रिंग के अलावा, स्ट्रिंग के अलावा और कौन से इम्यूटेबल क्लासेस है? तो एट दैट टाइम यू मस्ट नो कि जो भी ऑल रैपर क्लास, all the wrapper classes are immutable, all the wrapper classes are immutable। एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, राइट? along with string, all the wrapper classes are immutable, guys, immutable। ये भी इंटर में पूछा जाता है, राइट? दिस इज आल्सो आस्क इन इंटरव्यू, राइट? चलो नेक्स्ट। गाइस यहाँ पे देखो, here is a simple thing, here is a very simple thing, right? What you have the wrapper classes, you can see all the wrapper classes, right? You can see all the wrapper classes and their primitive data types, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है? हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात की है, राइट? बाइट, ठीक है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ऑल द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वी हैव, राइट? तो क्या जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसी के along you have the wrapper classes, right? तो this is the primitive data type, this is the wrapper class, right? मीनिंग दोनों का सेम ही है, दिस इज बाइट, दिस इज बाइट। ए बस एक क्लास आपको बताया गया, क्लास में वी राइट फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट जो लेटर होता है वो आप कैपिटल में लिखते हो, राइट? तो दीज आर ऑल द क्लासेस, दीज आर ऑल आर द क्लासेस, राइट? प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट इज अ डेटा टाइप एंड दीज आर द रैपर क्लासेस, these are the wrapper classes, right? these are the wrapper class, right? तो बाइट का बाइट है, शॉर्ट का शॉर्ट, इंट का क्या है यहाँ पे? इंटीजर है,
लॉन्ग का भी लॉन्ग ही, लेकिन यहाँ पे देखो अब स्पेलिंग, अगर यहाँ पे एल है, यहाँ पे कैपिटल एल है, राइट। फ्लोट का अगेन फ्लोट, डबल डबल, बुलियन बुलियन, कैरेक्टर कैरेक्टर, बुलियन बुलियन। हाँ यहाँ पे देखो कैर है और यहाँ पे कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे दो ही जगह पे आपको डिफरेंस दिखेगा, एक यहाँ पे एंड एक आपको कैरेक्टर के लिए। ठीक है, मतलब स्पेलिंग में डिफरेंस, बाकी सभी की स्पेलिंग सेम ही है, बाकी सभी की स्पेलिंग सेम ही है। पर यहाँ पे हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लासेस है, रैपर, दिस आर द क्लासेस, राइट, दैट्स व्हाई वी राइट इट इन कैपिटल, दैट्स व्हाई वी राइट इन कैपिटल। ओके, चलो। Why we need wrapper classes? It is also again important to understand why we need wrapper classes. Wrapper class will convert primitive data types in the into the object, right? देखो if there are the so many things जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आपको यू हैव टू पास द वैल्यू 10, आपको 10 तो पास करना है, कोई एक मेथड है जहाँ पे आपको वैल्यू 10 तो पास करना है, राइट। बट दे विल आस्क कि आप जैसा होता है ना, इंट इक्वल टू 10, ठीक है, इंट ए, इंट इक्वल टू 10, राइट। तो दे डोंट एक्सेप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दे एक्सेप्ट ओनली ऑब्जेक्ट टाइप्स, दे एक्सेप्ट ओनली ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 10 तो पास करना है, यू हैव टू पास द 10 वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको 10 तो पास करना है, बट दिस मेथड आर्गुमेंट विल एक्सेप्ट ओनली ऑब्जेक्ट, ओनली ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे इट इज एक्सेप्टिंग ओनली ऑब्जेक्ट, तो एट दैट टाइम यू कैन नॉट पास दिस, ठीक है, एट दैट टाइम यू कैन नॉट पास इंट एंड ऑल, एट दैट टाइम यू कैन नॉट पास दिस इंट एंड ऑल, राइट। तो दिस थिंग इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ तो भी मेथड है, देर इज गेट मेथड है, ठीक, गेट गेट मेथड इज आस्किंग फॉर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओ, राइट, ऑब्जेक्ट ओ, इस तरीके से वो मेथड आपको पूछ रही है, ठीक है, इट इज आस्किंग फॉर दिस गेट ऑब्जेक्ट ओ, राइट, गेट ऑब्जेक्ट हो, इस तरीके से मेथड है। बट जब आप मेथड को कॉल करते टाइम यहाँ पे एंड यू वांट टू पास द वैल्यू समथिंग लाइक, यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी आपको कुछ तो भी वैल्यू पास करनी है 100, राइट, यू हैव टू पास द वैल्यू 100, राइट। बट यहाँ पे अगर आपने ऐसा कुछ तो भी लिया, ठीक है, इफ यू टेक समथिंग लाइक दिस इंट ए इक्वल टू 100, इंट ए इक्वल टू 100, एंड इफ यू थिंक गेट, गेट में इस तरीके से पास करूंगा ए, राइट, यहाँ पे ए, तो गाइस इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, it will not work, right? But what you have to do, what you have to do, you have to take integer, integer, integer a equal to 100, you have to take integer a equal to 100, you have to take integer a equal to 100, right, and then you have to pass get a, right, now it will work, now it will work, right, now it will work, नाउ इट विल वर्क। तो ये जो मेथड है अपनी, ठीक है, अभी यहाँ से चलेगी ये मेथड, ठीक है, बट ये जो मेथड है गेट ऑब्जेक्ट ओ वाली, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, देयर आर सम मेथड जहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, बट यू वांट टू पास द, यहाँ पे ऐसा कुछ तो आपको 100 200 ऐसा कुछ पास करना है, राइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ पास करना है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप पास नहीं कर सकते, इट विल नॉट वर्क, बट दिस विल वर्क, क्योंकि दिस ए इज ऑब्जेक्ट, दिस ए इज ऑब्जेक्ट एंड दिस ए इज प्रिमिटिव डेटा, this a is primitive data type and this a is object, right, so that's why it will work। तो हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, we don't need to create a object like this, we need to object like this, ठीक है। अदरवाइज फिर क्या करना पड़ेगा, जो इंट वाला था, इंट वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रिमिटिव वाला था उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट, राइट। Then the object, ठीक है, the object are necessary if we wish to modify the argument, method argument pass into the method because primitive data types are passed by value, right, क्योंकि these are the primitive data types which are the passed by value, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, pass by object, pass by value, I will explain you separately, ठीक है, don't worry about it। now now the classes in java.util package, ठीक है, ये जो java.util package है handles only object, ठीक है, इस पैकेज के अंदर काफी सारे क्लासेस एंड मेथड्स है गाइस, ठीक है, विच एक्सेप्ट ओनली ऑब्जेक्ट एज अ मेथड इनपुट, मेथड इनपुट में वहां पे क्या लेंगे, इट विल टेक ओनली ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट टेक द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, उन्हें वैल्यू ही चाहिए, ठीक है, दे नीड ट्रू फॉल्स 100 200 500, राइट, ऐसी वैल्यू ही चाहिए, राइट, बट दे आर एक्सेप्टिंग ओनली ऑब्जेक्ट, ठीक है, दे आर एक्सेप्टिंग ओनली ऑब्जेक्ट, नॉट द प्रिमिटिव टाइप्स।
तो दैट्स वाई अगेन गाइस हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास में अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है ऑलरेडी, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, देन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द ऑब्जेक्ट, we need to convert it into the object and then we need to pass it, ठीक है। but in order to convert into the object we need a wrapper class, we need a wrapper classes, right। डेटा स्ट्रक्चरिंग कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो हम लोग अभी नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क में भी यही है guys, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ही, ठीक है। काफी सारे क्लासेस है, जैसे एरे लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, स्टोर्स ओनली ऑब्जेक्ट, दे अल्सो एक्सेप्ट ओनली ऑब्जेक्ट, दे राइट, दे अल्सो एक्सेप्ट ओनली ऑब्जेक्ट। चल मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। वी आर एट टू स्टडी द कलेक्शन, बट मैं आपको एक शॉर्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस आई विल जस्ट शो द एग्जांपल। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ता है ना, यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इंट नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर ऐसा कुछ तो भी लिखना है मुझे, न्यू एरे लिस्ट, इफ आई वांट टू राइट समथिंग लाइक दिस गाइस, राइट, तो यहाँ पे मैं इंट नहीं लिख सकता, आई कैन नॉट राइट इंट। देखो क्या बोलते हैं, टाइप आर्गुमेंट कैन नॉट बी इंट, राइट, बट हियर दे विल एक्सेप्ट इंटीजर, दे विल एक्सेप्ट इंटीजर। देखो यहाँ पे इंटीजर इंटीजर लिखा, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दे डोंट हैव एनी वरी, ठीक है। बट वही केस में अगर हम लोग लिस्ट वन पकड़ लेता हूँ मैं, एंड हेयर आई विल मेक द लिस्ट टू, ठीक है, एंड इफ आई ट्राई टू पास द इंट हियर, राइट, तो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता, राइट, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, जबकि हम लोग को देखो इसके अंदर भी है ना, मैं एक क्या है, लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड, डॉट ऐड, ठीक है। ऐड के अंदर देखो आई एम पासिंग द वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो ऐड, सॉरी ऐड ऑल नहीं, ऐड, ठीक है। देखो इसके अंदर मैंने 100 ही पास किया, आई पास ओनली 100, ठीक है, मैंने 100 ही पास किया, राइट, ये तो इंटीजर ही है ना, इंट ही अपना, इंट ही है, राइट। बट स्टिल इसने एक्सेप्ट, ए वाला एक्सेप्ट कर लिया, बट यहाँ पे जब मैं इंट लिख रहा था तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अगेन इफ आई ट्राई टू शो यू लाइक इंट ए इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ, राइट, एंड लिस्ट वन डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड, यहाँ पे हम लोग ए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने एक्सेप्ट तो कर लिया इस तरीके से, ओके, यहाँ पे गिव मी सम वैल्यू मोर देन, ओके, इट इज एक्सेप्टिंग इट, ठीक है, इट इज एक्सेप्टिंग इट बिकॉज यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्टिंग इट, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्टिंग इट। बट यहाँ पे वो डायरेक्टली यहाँ पे इंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल, अगेन इट विल नॉट एक्सेप्ट द इंट डायरेक्टली है, ठीक है, यहाँ पे वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा इंट, ठीक है। एंड इसके अंदर गाइस आपको काफी सारे ऐसे मेथड्स मिलेंगे, आई विल जस्ट शो यू, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे गए, हेयर यू विल सी, आई विल शो यू, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इट इज एक्सेप्टिंग इंट, इंट एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे इट इज टेकिंग बुलियन, दैट इज फाइन। we need to check some methods। यहाँ पे भी ले रहा है, कहाँ है एलिमेंट। ठीक है गाइस, यहाँ 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 पे भी यू कैन अल्फो, हियर अल्फो यू कैन चेक, यहाँ पे जो एलिमेंट दिया है इन्होंने, राइट, दैट इज अगेन वन ऑब्जेक्ट ओनली, बट लेट मी शो यू जहाँ पे उन्होंने क्लियरली ऑब्जेक्ट लिखा होगा,
ठीक है, here you can see they have written the object here, they have written the object here, राइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है। तो अगेन गाइस यहाँ पे भी हम लोग वैल्यूज पास कर सकते हैं, हियर ऑल्सो अगेन वी कैन पास द वैल्यू। ठीक है। एक्चुअली क्लास बहुत बड़ा है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट नाउ। ठीक है, बट हम लोग देखते हैं एक्सटेंड, ओके नॉट दिस वन, ऐड ऑल एलिमेंट। ठीक है, here also you can see guys it is asking for the object ef, right, object ef, it is asking for the object ef, right। यहाँ पे भी आप देखोगे आगे में, एक मिनट, ओके नॉट हियर, नॉट हियर, बुलियन, ओके दैट इज फाइन, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इट इज आस्किंग फॉर द इंडेक्स ऑफ, राइट। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बोल रहा है हम लोग, तो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे अपना कैरेक्टर वगैरह पास कर सकते हैं, वी कैन पास द कैरेक्टर एंड ऑल, राइट। यहाँ पे भी इंडेक्स ऑफ में, ठीक है, वी कैन पास एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर बट दैट शुड बी इन द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, दैट शुड बी इन द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ओके, इट इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग इज, ठीक है, एलिमेंट्स टू बी अपेंडेड, दैट्स व्हाई उसने कोई दिक्कत नहीं लिया यहाँ पे, हमने एक किया करके उसने यहाँ पे एरर नहीं दिया हमें। ठीक है, इट इज एक्सेप्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। बट यहाँ पे देखो हियर यू कैन नॉट राइट, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एट द टाइम इन द कलेक्शन, इन कलेक्शन क्लासेस। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल। बट एज ऑफ नो ध्यान में रखो, देयर आर द सेवरल एरियाज गाइस जहाँ पे हम लोग वी कैन नॉट यूज इंट डायरेक्टली, इंट बुलियन वगैरह जो हमारे पुराने वाले थे ना, प्रीमेटिव डेटा, वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, we cannot use it directly, that's why we need something like this। ठीक है, that's why we need a wrapper classes, right। the objective needed to support the synchronization in multi-threading। तो मल्टी के अंदर भी हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे सिंक्रोनाइजेशन करके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंक्रोनाइजेशन ऑल्सो इन मल्टी, राइट। तो उसके अंदर भी हम लोग देखेंगे देयर अल्सो यू नीड अ ऑब्जेक्ट, देयर अल्सो यू नीड अ ऑब्जेक्ट, राइट, देयर अल्सो यू नीड अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वहां पे भी हमें ऑब्जेक्ट ही लगेगा, तो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्राइमरी डेटा टाइप्स, वी हैव टू पास एज अ ऑब्जेक्ट, राइट। एंड उसके बाद में यहाँ पे देखो यूटिलिटी मेथड्स भी है। ठीक है, जबकि रैपर, दिस आर द क्लासेस, राइट। लेट मी शो यू अगेन गाइस। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द इंटीजर, दिस इज द रैपर क्लास। तो रैपर क्लास के बाद में इस क्लास में काफी सारे मेथड्स भी अवेलेबल है guys। ठीक है, इट हैव द सो मेनी मेथड्स आल्सो, राइट। इसके पास में काफी सारे मेथड्स भी है, देखो ये डिजिट करके दिख रहा है, डिजिट, राइट। तो यहाँ पे इफ डिजिट करके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड भी मिल जाएंगे इफ डिजिट करके, सो वी कैन फाइंड आउट द इफ डिजिट करके भी। ठीक है, काफी सारी टू स्ट्रिंग मेथड है अपने पास में अवेलेबल। ठीक है, एक सिंपल सिंपल मेथड अगर आपको दिखा दो जो अभी समझ में आएंगे आपको। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग दैट इज फाइन, वेरी गुड। ठीक है, गेट कैश, राइट। तो आप देख सकते हो कि इस क्लास के पास में काफी सारी पार्सिंट वगैरह होगा, पार्सिंट, राइट, इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस यू आर हैविंग सो मेनी मेथड्स, इस क्लास के अंदर आपके पास में काफी सारी मेथड्स है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके पास में नहीं होती। देखो सम, मैक्स, राइट, ये मेथड भी यू आर ऑलरेडी हैविंग द मेथड्स, यू आर ऑलरेडी हैविंग द मेथड, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू आर ऑलरेडी हैविंग सो मेनी मेथड्स। देखो इंट, ठीक है, यहाँ पे सम करके मेथड है डायरेक्टली, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस टू वेरिएबल, सम करके मेथड यूज करो, इंटीजर डॉट सम, इंटीजर डॉट सम करोगे आप ए प्लस बी आप ऐड कर सकते हो, राइट, समथिंग लाइक दैट। इफ यू कैन डू इट, इंटीजर डॉट सम अगर आप करोगे, यहाँ पे यू पास ए एंड 10 and 20 पास करो, राइट, यू विल गेट द आउटपुट, यू विल गेट द आउटपुट, राइट, डायरेक्टली यू कैन यूज इट लाइक दिस। ठीक है, आपको एडिशन, आपको सम करने के लिए अलग से लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन ऑलरेडी डू लाइक दिस, यू कैन ऑलरेडी डू लाइक दिस, राइट। तो वी आर ऑलरेडी हैविंग सच मेथड्स, देखो मैक्स वाली भी मेथड यू आर ऑलरेडी हैविंग, ठीक है, मीन वाली भी मेथड यू आर ऑलरेडी हैविंग।
डिस्क्राइब कंफर्टेबल यू आर आल्सो हैविंग, राइट। तो काफी सारी मेथड्स भी आपके पास में अवेलेबल हो जाती है। तो दिस इज गाइस अनदर बेनिफिट ऑफ रैपर क्लासेस, इट प्रोवाइड सो मेनी मेथड्स, यूटिलिटी मेथड्स प्रोवाइड करता है, राइट। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, इफ यू सी हियर, ठीक है, 5 int वाली मेथड है अपने पास में जो अभी हमने देखी थी, ठीक है। उसमें क्या है ना, इफ यू आर पासिंग द स्ट्रिंग, इट विल कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एन इंट। देखो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देगा, कोई भी स्ट्रिंग है उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसका फिर मेथड है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कैर के पास में मेथड इफ डिजिट करके, ठीक है, इट विल चेक इफ द कैरेक्टर इफ डिजिट और नॉट, इट विल चेक इफ द कैरेक्टर इफ डिजिट और नॉट, ठीक है, इट विल चेक कैरेक्टर इफ डिजिट और नॉट, ठीक है। वन बाय वन वी विल सी द एग्जांपल ऑल्सो, हम लोग इसके एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। टू स्टोर द डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है, इन, हाँ यहाँ पे देखो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको रट्टा मार लो, तो व्हेन वी डील विद द डेटाबेस, जब डेटाबेस के साथ में डील करेंगे हम लोग, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट इन वेरी डिटेल, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दो, डेटाबेस ऑपरेशन में, ठीक है, रैपर क्लासेस आपका जीरो वैल्यू स्टोर कर देगा, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप विल स्टोर द जीरो, बट रैपर क्लासेस विल स्टोर द नल, will store the null, right? तो guys there is a huge difference between zero and null, ठीक है, जीरो एंड नल। ठीक है, जीरो एंड नल में काफी बड़ा डिफरेंस है, जीरो एंड नल में काफी बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कैसे डिफरेंस है गाइस, ध्यान दो, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड नल, ध्यान दो। अगर आपने कोई एग्जाम दी, ठीक है, अगर आप कोई एग्जाम शीट देख रहे हो, एग्जाम शीट देख रहे हो, राइट, और यहाँ पे आपको मैथ के जो मार्क्स है, ठीक है, मैथ के जो मार्क्स है, ठीक है, मैथ का आपने पेपर दिया, अब मैथ के मार्क्स में आपको अगर जीरो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क्स में अगर जीरो दिख रहा है, तो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड गाइस, कैन यू एक्सप्लेन मी। मैथ के दिस इज द योर आंसर शीट, ठीक है, आंसर शीट, या फिर आपने जो एंडिंग में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको लगा है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपकी मार्कशीट लगाई है, और मार्कशीट में यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है, मार्कशीट में आपको अगर जीरो दिख रहा है, तो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। लेट्स कंसीडर करो एक साइड में आपको जीरो दिख रहा है, एक साइड में आपको नल दिख रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस। जीरो एंड नल में डिफरेंस क्या हो जाएगा। नल इज नॉट कंसिडरेबल एंड जीरो इज हो सकता है मार्क्स हो उसके। करेक्ट, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। देखो इट मे बी पॉसिबल कि उस पर्सन ने एग्जाम दी है, दैट पर्सन हैव गिवन द एग्जाम एंड ही हैव गॉट द मार्क एज अ जीरो, पर्सन ने एग्जाम देने के बाद उसको जीरो मार्क्स मिले। बट अगर नल दिख रहा है वहां पे, तो वी कैन से कि guys यहाँ पे नल है, इसका मीनिंग इस बंदे ने एग्जाम ही नहीं दिया है, या फिर किसी ने उसके मार्क्स ही इंटर नहीं किए, नोबडी हैव इंटर द मार्क्स, राइट। इफ यू फाइंड नल, आप समझ लोगे कि guys इसको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, या फिर इस पर्सन ने एग्जाम नहीं दिया है, इस पर्सन ने एग्जाम नहीं दिया। बट अगर उसको वहां पे जीरो दिखा, तो ही विल अंडरस्टैंड, द पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको मार्क्स से जीरो मिले, उसको मार्क्स से जीरो मिले हैं। इफ इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, द डिफरेंस बिटवीन नल एंड जीरो इज क्लियर टू एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग डेटाबेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नॉट इन दिस बैच बट इन अनदर बैच, ठीक है, जो फुल स्टैक की बैच है उसमें हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड नल इन बेटर वे, ठीक है, क्योंकि हमें डेटाबेस में डेटा सेव करना पड़ता है, तो वी समटाइम्स वी सेव जीरो एंड समटाइम्स वी सेव नल, राइट। तो दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, कब कब यूज करना है हमें, दैट वी मस्ट नो, दैट वी मस्ट नो, राइट। चलो, अभी यहाँ पे व्यापक क्लास में ही जो कंसेप्ट होता है गाइस, अगेन इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, या फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग, व्हाट इज ऑटो अनबॉक्सिंग, राइट। तो ये चीजें भी आपको इंटर में पूछी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू द व्यापक क्लासेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग primitive data type into wrapper classes, we called it as a boxing, we call it as a boxing, ठीक है, we call it as a boxing, right, we call it as a boxing, ठीक है। the process of converting wrapper class into the primitive data type, we call it as a unboxing। तो दोनों भी उल्टा है,
ठीक है, बॉक्सिंग मीन्स क्या? प्रिमिटिव को जब हम लोग रैपर में कन्वर्ट करेंगे वी विल कॉल इट एज अ बॉक्सिंग, एंड रैपर को जब हम लोग प्रिमिटिव में कन्वर्ट करेंगे वी विल कॉल इट एज अ अनबॉक्सिंग, वी विल कॉल इट एज अ अनबॉक्सिंग, राइट? From Java 1.8, boxing and unboxing process automated, ठीक है, hence we call it as a auto boxing या फिर auto unboxing, ठीक है। कोई पीपल इसको बॉक्सिंग बोलेंगे, कोई ऑटो ऑटो बॉक्सिंग बोलेंगे, कोई अनबॉक्सिंग बोलेगा, कोई ऑटो अनबॉक्सिंग बोलेगा। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस इज नथिंग बट फ्रॉम 1.5 बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग प्रोसेस ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो गई है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग, राइट? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी में नेक्स्ट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कैन यू सी हाउ वी आर डूइंग, हाउ वी आर कन्वर्टिंग, दिस इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, दिस इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट? एंड दिस इज, एंड हाउ वी आर कन्वर्टिंग इट, यहाँ पे देखो दिस इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव को हमने कन्वर्ट कर दिया गाइस रैपर क्लास के अंदर, रैपर क्लास में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑटो बॉक्सिंग, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। एंड वही उसको हम लोग चेंज कर दें, चलो एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है इसलिए हमें उतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मान लो हमारे पास में इंट ए इक्वल टू समथिंग लाइक वी हैविंग वैल्यू लाइक 100, राइट, 100। बट आपको पता है कि काफी सारी जगह पे यू कैन नॉट यूज इंटीजर, आप इंट यूज नहीं कर सकते, आप इंट यूज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं है guys, आपके पास में डायरेक्टली क्या है, इंटीजर लिखो आप, इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल का नाम देना है, ठीक है, इंटीजर नंबर इक्वल टू यहाँ पे आपने ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। नाउ दिस वैल्यू जो 100 थी पहले ए में स्टोर थी, अभी वो नंबर में स्टोर होगी, अभी नंबर में स्टोर होगी। मतलब क्या हो गया गाइस, आप यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रिमिटिव को, प्रिमिटिव कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू रैपर, ठीक है, प्रिमिटिव प्रिमिटिव कन्वर्ट इनटू द रैपर, ठीक है। इस तरीके से प्रिमिटिव जो था रैपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर आपको इसी वेरिएबल को, ठीक है, मान लो अगर आपके पास में कोई और है, ठीक है, लेट्स कंसीडर करो इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू इक्वल टू समथिंग लाइक समथिंग लाइक 100 अगर आपके पास में है, ठीक है, 100 बोलो, या फिर हम लोग यहाँ बोलते हैं 250 आपके पास में है, 250 आर हैविंग 250, आपको क्या करना है, रैपर के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट? द सेम वे यू कैन डू इट, ठीक है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली, राइट, व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे ले लो इंट, ठीक है, इंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आई, आई इक्वल टू वैल्यू, राइट? कैन यू सी गाइस, ये ऑटोमेटिकली दिस इज द प्रोसीजर हैपनिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको एडिशनल कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी कन्वर्टेड रैपर क्लास, हियर वी कन्वर्टेड द रैपर क्लास, रैपर टू प्रिमिटिव, रैपर टू प्रिमिटिव, ठीक है, रैपर टू प्रिमिटिव, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबॉक्सिंग या फिर ऑटो अनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग या फिर ऑटो अनबॉक्सिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ बॉक्सिंग या फिर ऑटो बॉक्सिंग, बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग, राइट? जहाँ पे हम लोग प्रिमिटिव को कन्वर्ट कर रहे हैं रैपर के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे बॉक्सिंग। जहाँ पे रैपर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं प्रिमिटिव में, रैपर को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रिमिटिव में, उसको बोलेंगे हम लोग अनबॉक्सिंग, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है गाइस? एनीवन एनी डाउट है गाइस? कम ऑन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एवरीवन एवरीवन। चलो, वेरी गुड, ओके दैट्स फाइन, राइट? तो यहाँ पे गाइस चीजें ध्यान में दो, ठीक है, दिस इज द शॉर्ट स्लाइड, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। ईच रैपर क्लास प्रोवाइडेड यूटिलिटी मेथड फॉर कन्वर्टिंग, पासिंग एंड कंपेयरिंग द वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इफ यू वांट टू कन्वर्ट गेट स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करना है आपको इंट के अंदर, इफ यू वांट टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द इंट, ठीक है, देखो कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द इंट मतलब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू प्रैक्टिकली।
आप बोलोगे नहीं तो फिर हम लोग कन्वर्ट कर सकते किसी भी स्ट्रिंग को वैसा नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे समथिंग लाइक अगर आपके पास में ऐसा कुछ तो भी है। ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग एफ टी आर इक्वल टू, आपने ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ है, लेट फ्रॉम फिर को, तो आपके पास में ऐसा कुछ तो भी है 100 करके। राइट। नाउ गाइस इट इज अ स्ट्रिंग, इट इज अ स्ट्रिंग। ये आपके पास में एक स्ट्रिंग ए वाला हो गया। ठीक है। नाउ दिस इज द अनदर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एफ टू। ठीक है, एफ टू। राइट। अगर आप इसको एफओपी में करने जाओगे, ठीक है, एफओपी में आप स्ट्रिंग एफ वन स्ट्रिंग प्लस, ठीक है, इस तरीके से अगर आप कुछ करने जाओगे, 100 200 करके हमने ले लिया, 100 200 हमने करके ले लिया। ठीक है। तो इनका एडिशन होगा क्या? नहीं, इनका एडिशन नहीं होगा, बट यू विल सी समथिंग लाइक द 100 200, ऐसा कुछ तो भी आपका आउटपुट आएगा, ऐसा कुछ तो भी आउटपुट आएगा। राइट। बट अगर आपको इस स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करना है, हियर यू कैन सी गाइस, इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया। राइट, 100 200 करके आपका आउटपुट आ गया। राइट। बट अगर आपको इनको एडिशन करना ही है, करना ही है, इनका एडिशन आपको इन्हीं करना ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? इंटीजर, इंटीजर डॉट पारफिंट करके है। ठीक है, पारफिंट वाली मेथड है जहाँ पे यू यू कैन फाइंड, यू कैन स्टोर द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी स्ट्रिंग की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है। और इससे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट सम इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगा। तो नंबर वन, ठीक है, नंबर वन, यहाँ पे मिलेगा नंबर टू, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग एफ टी आर वन डाल देते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल इन एफ ओ पी वी विल डू नंबर वन, ठीक है, प्लस नंबर टू। ठीक है, नंबर टू। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में 100 100 आता था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, तो 100 200 300 हो जाएगा अभी। ठीक है, कैन यू सी 300? राइट। तो पार्सेंट मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ऐसा कुछ तो भी लिखा है उसको हम वी कैन कन्वर्ट इट। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर के अंदर, तो आई गॉट दिस नंबर वन, यहाँ पे नंबर टू मिला। ठीक है। अगेन गाइस यहाँ पे इसी तरीके से कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मान लो लेट्स कंसीडर आपने ऐसा कुछ दब दिया, स्ट्रिंग एफ इक्वल टू, आपने कुछ तो भी नाम लिखा आपका, ठीक है, एन एफ एंड आपने बोला कि फिर इसको कन्वर्ट करो करके, तो इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। राइट। इट इज नॉट कन्वर्टेबल इंटीजर। राइट, इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल गाइस। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ऐसा भी करेंगे हम लोग तो इट विल गिव द एक्सेप्शन। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो यहाँ पे उसने एरर दे दिया। ठीक है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन करके। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट। तो यहाँ पे भी हैव सम वैल्यूज गिव। ठीक है, इंटीजर डॉट वैल्यू अप करके, वैल्यू अप करके एक क्या करेगा, अगेन इट विल कन्वर्ट। दोनों मेथड में डिफरेंस देखो। दोनों मेथड में डिफरेंस देखो। इंटीजर डॉट पारफिंट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इंट के अंदर। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द इंटीजर। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, पारफिंट क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द इंट। ठीक है, तो इंट एंड इंटीजर एला डिफरेंस हो जाएगा। कंपेयर वाली मेथड में भी देखो, इंट वैल्यूज को कंपेयर करेगा, इफ डिजिट वाले में भी हमारे पास में मेथड है इफ डिजिट करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है इफ डिजिट करके। ठीक है, तो इट विल चेक गाइस, इट विल चेक द गिवन कैरेक्टर इफ डिजिट और अल्फाबेट, इट इफ डिजिट अल्फाबेट या फिर क्या है तो चेक करेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे बुलियन डॉट वैल्यू ऑफ करके लिखा है गाइस, वैल्यू ऑफ करके। तो यहाँ पे अगर आप पास करोगे ऐसा कुछ तो भी, ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ करके लिखा है, बुलियन डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर करो आपके पास में ऐसा कुछ तो भी है स्ट्रिंग। ठीक है, एफ वन इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, यू आर हैविंग समथिंग लाइक दिस ट्रू करके। तो इसका मीनिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग के अंदर ट्रू लगते हो तो देर इज नो वैल्यू। राइट। बट व्हाट यू कैन डू बुलियन, यू कैन डू बुलियन दिस वैपर क्लास डॉट वैल्यू ऑफ करके। ठीक है, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ के अंदर आप अगर यहाँ पे पास कर दोगे एफ वन, राइट, नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, दिस बी नाउ विल बी हैविंग द ट्रू वैल्यू, एक्चुअल जो हमें ट्रू फॉल्स वैल्यू चाहिए ना बुलियन के अंदर, नाउ इट विल कन्वर्ट, इट विल बी हैविंग द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इट विल हैव नाउ। ठीक है, इट विल हैव द एक्चुअल वैल्यू नाउ। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, अगर कभी अगर आप कोई प्रोग्राम वगैरह कर रहे हो तो उस प्रोग्राम में आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैरेक्टर, कैरेक्टर डॉट इफ अल्फाबेट करके, देखो इसमें इफ अल्फाबेट करके है, इफ डिजिट करके है, राइट, और इफ लेटर करके भी होगा, इफ लेटर करके। ठीक है, तो हियर यू कैन चेक विद द इट इफ लेटर और नॉट।
ठीक है, मतलब अल्फाबेट कैरेक्टर है कैपिटल एंड स्मॉल में और नॉट। ठीक है, तो लेटर है नहीं है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये भी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ऑल दिस थिंग्स रैपर क्लासेस हैव प्रोवाइडेड यू। ऑल दिस थिंग्स रैपर क्लासेस हैव प्रोवाइडेड यू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में देना। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, चलो ओके। नाउ यहाँ पे देखो, एक मैंने छोटी सी चीज लिख के दी है। ठीक है, इंटीजर नाम इक्वल टू न्यू इंटीजर। ठीक है, न्यू इंटीजर। तो हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते। पहले पहले हम लोग लिख पाते थे, जावा 8 तक हम लोग लिख पाते थे। ठीक है, बट जावा 9 के बाद में वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे डबल कोट में अगर हमने 10 वगैरह पास करे राइट, तो वी कैन नॉट डू दिस सिंस जावा 9। जावा 9 के बाद हम लोग नहीं कर सकते। जावा जावा 8 तक हम लोग कर सकते थे। जावा 8 तक कर सकते हो। इफ अगर अगर आपके प्रोजेक्ट में अगर आप जावा 8 ही यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग जावा 8 वर्जन, जावा का जो 8 वर्जन ही यूज कर रहे हो, देन यू कैन डू लाइक दिस। बट अगर आप जावा 9 के बाद अगर यूज कर रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस। ठीक है, चलो। नाउ यहाँ पे द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गई टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होता है ध्यान दो। कन्वर्टिंग अ डाटा फ्रॉम वन टाइप, converting the data from one type to another type is called as a typecasting. Very important concept guys. Converting data from one data type to another data type is called as a typecasting. Right? Now again guys, typecasting दो टाइप की है। देखो टाइपकास्टिंग होती क्या है। कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम वन डेटा टाइप, राइट, मतलब इंट का हम लोग बुलियन में कर रहे हैं, बुलियन का इंट में कर रहे हैं, राइट। दीज आर द डेटा टाइप जिनको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। जो कि होगा नहीं बोलना इंट और बुलियन, राइट। जस्ट आपको बता दो इंट का बाइट में करना है या फिर इंट का शॉर्ट या लॉन्ग में करना है, राइट। डबल का फ्लोट में करना है, फ्लोट का डबल में करना है, राइट। तो अगर आपको टाइप कास्टिंग करनी है, ठीक है, मतलब सेम डेटा टाइप नहीं, डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, कन्वर्टिंग वन फ्रॉम अनदर। ठीक है, मतलब एक दूसरे को हम लोग चेंज करने वाले, एक्सचेंज करने वाले, राइट, कन्वर्ट करने वाले। तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के दो टाइप रहेंगे। ठीक है, एक रहेगा वाइडनिंग अपकास्टिंग, एक रहेगा नैरोइंग डाउन कास्टिंग। एक रहेगा वाइडनिंग अपकास्टिंग, एक रहेगा नैरोइंग डाउन कास्टिंग, राइट। तो वाइडनिंग का कंसेप्ट समझ लो guys, यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग। ध्यान दो। बाइट बी इक्वल टू 20, उसको मैं इंट के अंदर स्टोर कर रहा हूं, मतलब छोटे डेटा टाइप को मैं बड़े डेटा टाइप के अंदर सेव कर रहा हूं, राइट। बाइट इज अ स्मॉल डेटा टाइप। बाइट इज अ स्मॉल डेटा टाइप। बाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, बाइट को क्या कर रहा हूँ मैं इंटीजर के अंदर सेव कर रहा हूँ, मतलब छोटे को मैं बड़े के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, राइट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप, लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप, राइट। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे व्हाट वी आर सेइंग, फ्रॉम लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप। ठीक है, बाइट इज अ लोअर डेटा टाइप। ठीक है, एज कंपेयर टू इंट, बाइट इज अ लोअर डेटा टाइप, राइट। तो हम लोग क्या करें, व्हाट वी आर डूइंग हियर, we are converting a small data type into the bigger data type. We are converting small data type into the bigger data type. That's why we can call it as a, that's why we can call it as a upcasting या फिर widening. As we are converting lower data type to higher data type, there is no data loss. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो नो डेटा लॉस मीन्स क्या, सॉरी। देखो गाइस, आपके पास में पकड़ लो 5 केजी का एक ये है। ठीक है, 5 केजी का आपके पास में एक बॉक्स है। 5 केजी का बॉक्स है। तो 5 केजी के बॉक्स में आप 1 केजी आलू तो कभी भी डाल सकते हो। ठीक है, 5 केजी के बॉक्स में 1 केजी आप आलू कभी भी डाल सकते हो। देर इज नो डेटा लॉस। देर इज नो डेटा लॉस, राइट। तो वही तो चीज हम लोग कर रहे हैं। बड़े डेटा टाइप में हम लोग छोटा डेटा टाइप यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, बड़े वाले में हम लोग छोटा ऐड कर दें, तो कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। फॉर वाइडनिंग नो नीड टू स्पेसिफाई टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिटली। ठीक है, जेवीएम यहाँ पे ध्यान रखता है। ठीक है, जेवीएम इसका ध्यान रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप छोटे को बड़े वाले में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर इज नो डेटा लॉस। ठीक है, नॉट नो डेटा लॉस एट ऑल। ठीक है, चलो। नाउ द नेक्स्ट थिंग, डाउन कास्टिंग। ठीक है, नैरोइंग। ठीक है, नाउ इसको ध्यान दो, समझ समझ लो कैसे, इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग लॉन्ग। लॉन्ग को मैं स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ इंट के अंदर। इफ इट इज पॉसिबल। गाइस, आपका बर्तन 10 केजी का है, सॉरी 5 केजी का है। आपका जो बॉक्स है 5 केजी का। एंड उसके अंदर मैं 10 केजी आलू आलू डालने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 केजी आलू डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इफ इट पॉसिबल, 10 केजी आलू 5 केजी बॉक्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं क्या?
मतलब जिस बॉक्स की कैपेसिटी 5 kg की है, जिस बॉक्स की कैपेसिटी 5 kg की है, क्या उसके अंदर आप आपके 10 किलो के पापा को स्टोर कर सकते हो क्या? आलू को स्टोर कर सकते हो क्या? कमन, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो वहां पे क्या हो जाएगा गाइस, डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। मतलब आपके 5 किलो जो आलू रहेंगे, ठीक है, दैट विल गेट लॉस्ट, ठीक है, योर मटेरियल विल गेट लॉस, राइट? तो दैट्स वाई जब भी आप बड़े डेटा टाइप को छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो गाइस आपको एरर आ जाता है, ठीक है, यू विल सी द एरर, ठीक है, यू विल सी द एरर, ठीक है। यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक अगर इंट, अगर हमने ऐसा कुछ तो, बाइट बी इक्वल टू, अगर मैं ले रहा हूँ 100, राइट, आई कैन स्टोर इट इनसाइड द ए, इनसाइड में इंट के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ, इंट के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बाइट, इंट की कैपेसिटी बाइट से ज़्यादा है, इंट की कैपेसिटी बाइट से ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वेयर एज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लॉन्ग एल इक्वल टू 100 अगर करता हूँ, ठीक है, 100 करता हूँ, राइट, एंड यहाँ पे करता हूँ मैं इंट, ठीक है, इंट आई इक्वल टू, अगर मैं एल करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे कहीं एरर आ जाएगा मुझे, इफ यू कैन चेक इट आउट प्रॉपरली, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है, हेयर कैन यू सी, यहाँ पे मुझे रेड लाइन्स आ गई, ठीक है, आई गॉट द रेड लाइन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता कि 100 तो हम लोग इंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, वी कैन स्टोर द 100 इन इंट, 100 हम लोग इंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट, बट दिस इज द एल बिलोंग्स टू गिव लॉन्ग, राइट राइट, और जेवीएम को एवअप नहीं पता कि इसकी कौन सी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, जेवीएम डोंट नो अबाउट दिस वैल्यू। हाँ, जेवीएम नो अबाउट दिस डेटा टाइप, राइट, उसको पता है कि हम लोग, मैं लॉन्ग को इंट के अंदर स्टोर नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू परफॉर्म द टाइप कास्टिंग, ठीक है, यहाँ पे देखो नैरोइंग डाउन कास्टिंग आपको करना पड़ेगा, हेयर यू हैव टू राइट, हेयर यू हैव टू राइट, यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, हेयर यू हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन, हेयर यू हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन कि गाइस मुझे कन्वर्ट करना है इसको इंट के अंदर एनी हाउ। डेटा लॉस होता है, होने दो, आई डोंट केयर बट एनी हाउ कन्वर्ट इट इनटू, ठीक है, कन्वर्ट लॉन्ग इनटू द इंट, ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हो कि गाइस मुझे कन्वर्ट करना ही है, आई वांट टू कन्वर्ट एट एनी कॉस्ट, आई वांट टू कन्वर्ट एट एनी कॉस्ट, राइट, आई वांट टू कन्वर्ट एट एनी कॉस्ट, ठीक है, आई वांट टू कन्वर्ट एट एनी कॉस्ट, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एफ डाउन कास्टिंग या फिर नैरोइंग, डाउन कास्टिंग या फिर नैरोइंग, वी विल कॉल इट एफ डाउन कास्टिंग या फिर नैरोइंग, right? चलो, the process of converting higher data type into the lower data type is called as the narrowing, is called as narrowing, okay? As we are converting higher data type to the lower data type, there is a chance of data loss, obviously guys, यही चीज हमने पढ़ी अभी, ठीक है। For narrowing we need to specify typecasting manually, otherwise program can't compile, right? तो हमें मैन्युअली मेंशन करना पड़ेगा कि गाइस हम लोग एक्सप्लिसिटली करना ही चाहते हैं, ठीक है, जानबूझ के हम लोग करना ही चाहते हैं, देयर इज नो ऑप्शन, राइट। तो गाइस यही है, ठीक है, स्ट्रीम टाइप कैन नॉट, टाइप कैन बी कन्वर्टेड टू इंटीजर यूजिंग, ठीक है, चलो यहाँ तक नहीं, ठीक है, यहाँ तक ही, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एज ऑफ नाउ टाइप कास्टिंग, ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्किंग विद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर यूजिंग पारसेंट मेथड, राइट, पारसेंट से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी आपको बताया गया मैंने, पारसेंट को हम लोग इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इन दोनों का F1 एंड F2 का एडिशन अगर किया होता हमने, यहाँ पे अगर एडिशन किया होता हमने, राइट, तो इसका आंसर क्या मिलता अपने को, वी वुड हैव 10 एंड 20, 10 एंड 20 ऐसा मिला होता हमें, 10 एंड 20 मिला होता, राइट, बट सेम चीज यहाँ पे हमें क्या मिला, 30 मिला, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इंट के अंदर, राइट। ठीक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, रेफरेंस टाइप को हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल सी चीज है, बट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, ठीक है। एज ऑफ नाउ गाइस, एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट? दिस वीक गाइस विल बी हैविंग द टेस्ट, एक टेस्ट रहेगा लाइव क्लास में ही, ठीक है, इट विल बी सरप्राइज, इट मे बी हैपन टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, कभी भी हो सकता है, नॉट टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, या फिर उसके बाद, ठीक है। एनी डाउट गाइस एज ऑफ नाउ, आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को?
कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको काफी काम में आएगा आपके वर्किंग में एंड इन इंटरव्यू ऑल्सो।